On behalf of STARS Forum, I want to welcome everybody to today's webinar. Today we have invited Dr. Sabiruddin Sheikh, who is thematic program executive from BIAF Development Research Foundation. He is based in Nasik and is a specialist in livestock development and management services that BIAF has been developing and providing for the last several years. Dr. Sheikh is going to talk to us about cattle breeding today and many of the lessons learned by BIAF over the almost 40-50 years or maybe 50-55 years of their experience in supporting dairy farming, cattle breeding and so on. In preparation for that, I would like all our participants to keep themselves on mute. And once Dr. Sheikh finishes his presentation, we will have a conversation with him. तभी आपके पास अगर कोई questions रहेंगे, आपके कोई doubts रहेंगे, तो जरूर presentation के बाद आप पूछ लीजिए. Dr. Sheikh will be here for a conversation after his presentation. और उनके बाद BIAF के ही एक और एग्जीक्यूटिव हैं मधुरा जी, जो BIAF के प्रोग्राम्स के बारे में भी कुछ और बताएंगे हम सबको. तो इसके साथ मैं थोड़ी देर में डॉक्टर शेख को बोलूँगा कि आपका प्रेजेंटेशन शुरू करें, लेकिन उसके पहले 2 मिनट में स्टार्स फोरम के बारे में आप सबको बता दूँ. स्टार्स फोरम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. हम लोग एक नेटवर्क हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन इंडिविजुअल्स के जो भारत में अपने रूरल कम्युनिटीज के साथ स्किल्स डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे जो काम करते हैं, उनका एक बड़ा सा नेटवर्क है. हमारे अफिलिएट जो हैं वो सारे भारत में स्प्रेड आउट हैं और कई लोग जो हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं. और ये फोरम का आइडिया ये है कि इन सब का जो एक्सपीरियंस है उनको एक दूसरे के साथ बांटना है. क्यों? So that we can learn from each other's experience, we can learn from the successes as well as failures of others and share our own successes and failures so that we can help develop rural communities faster, help their development on the basis of knowledge, expertise, skills and so on. तो ये हेतु है स्टार्स फोरम का. हम लोग एनुअली एक बार दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस रखते हैं. अभी दिसंबर 6 से 10 तारीख तक अपना हमारा स्टार्स फोरम का 12वां एनुअल कॉन्फ्रेंस रहेगा. आप सबको भी उसमें इनविटेशन मिलेगा ही. और हर महीने 2 महीने में हम लोग कोई एक्सपर्ट को बुलाते हैं. वी आस्क देम टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर NGOs, for people working in NGOs, for people working in the rural communities, and those who are involved in the development of rural India. So that is the broad objective of STARS Forum. It is an open forum. It's a network of people who like to share their experience, learn from one another and so on. So we invite you to always participate in these conversations, webinars. Participate in our annual conference. We have uploaded several of our past webinars on our YouTube channel. So please go there and watch many of those webinars. And if you are not yet an affiliate of STARS Forum, please write to us. And we will be happy to include you in our program and register you as an affiliate of STARS Forum. So इसके साथ I would like to invite Dr. Sheikh. Dr. Sheikh, please, may I invite you, welcome you to STARS Forum, and thank you so much for taking your time to talk about an important topic of importance, I would say, for many people in rural India. Many of us have heard many things about the milk revolution, the white revolution of India, and which has made India one of probably the world's largest producer of milk and milk products. But there's still a lot more work to do, and we would be learning from your experience, Dr. Sheikh. So may I request you to start your presentation, please.
Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Stars Forum, to give me an opportunity to share the experience of BIOF in livestock and also link up with the other NGOs and other peoples of the pan India level. Thank you very much, sir. I will start the presentation. Am I audible, na, sir? So, welcome all of you from BIOF Development Research Foundation. Today we will discuss about the integrated livestock development program and some experiences of BIOF in developing the livestock program in implementing livestock program at field level. In brief, I will organization profile founded by noted Gandhian Dr. Manibhai Desai ji in 1967. BIOF is committed to sustainable development of rural India, and also the mission of BIOF is to create opportunities of gainful self-employment for the rural families, especially disadvantaged sections, and ensuring sustainable livelihood, enrich environment, improved quality of life, and good human values. These are our BIOF's main mission, and we are working in development programs through various thematic areas in 12 states. The basic that how BIOF is working, BIOF's approach, I will brief in that BIOF is working at field level in this approach that asset multiplication rather than distribution. Because we've seen that in field some goats will be distributed, some animals will be distributed, some poultry. This should not be done, because at farmer level, when we think about the family oriented program, resource development, when we think about the resource development, we think about the family orientation and the comprehensive and the integrated program, then asset multiplication is not a result oriented. Because क्या हो जाएगा, number of calf बढ़ जाएंगे, number of calf पैदा हो गए, but that farmer doesn't know how to handle this calf, how to feed, how to management, what health precautions he has to take, that all, which type of genetic he wants, which type of milk production will be from that animal, that goat, that is most important. And that's why BIOF every time approaching rather than distribution, assets multiplication at the family oriented program. And we are not the mass production, numbers में काम करना है, number of ये बढ़ाना है, that is not motto. We are that जो कुछ भी काम हुआ है, लेकिन उसका impact क्या आया है, कितने farmers तक उसका फायदा पहुंचा है, that is most important. और उसके आगे ये बात है कि appropriate field applications of latest technologies, जो कुछ भी आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो जो कुछ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जो डेवलपमेंट्स हो रहा है लैपटॉप डेवलपमेंट में, उसको हमको कैसे हम ज्वाइन कर सकते, कैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, हाउ वी विल अवेयर द फार्मर रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी, वो न्यू टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज आवर अप्रोच. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, every time there should be a research and development. जो कुछ भी काम हुआ, whatever the work we have done, whatever the implementation we have done regarding livestock development, उसके बारे में जो कुछ भी है, what factors affecting, which factor has affected, which factor has which effect, what income level has been done due to animal, ये सब रिसर्च और R&D भी साइड बाय साइड जो है करते ही रहते हैं, और वो करना ही चाहिए. तभी जाके हमारा जो एक मैंने जो यहाँ पे बताया है कि डबलिंग ऑफ इनकम, तो ये सब चीजें ना, इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमारा एक ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड अप्रोच अगर रहा, इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर रहा, तभी हम ये चीज हासिल कर सकते हैं. अलग अलग थीमेटिक एरियाज में BIOF काम करती है. 12 स्टेट में मैंने जैसे बताया, 318 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग कवर करते हैं, 98,000 मोर देन विलेजेस कवर हुए हैं इसके अंदर, और 43 लाख से ज्यादा जो है तो फैमिलीज तक पहुंचे हैं.
इसमें मेजर कोर थीमेटिक एरियाज आर लाइवस्टॉक, एग्रीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसी के साथ साथ वी आर आल्सो वर्किंग इन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, वुमेन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्किल डेवलपमेंट। ये सब चीजें भी इसमें हम लोग काम करते हैं। Now we are focusing on the cattle breeding center. What is cattle breeding center? कैटल ब्रीडिंग सेंटर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको लिंक अप होना चाहिए, तो इसके बारे में आई विल ब्रीफ अबाउट दैट। वन कैटल डेवलपमेंट सेंटर, जो भी हम उसको लाइवस्टॉक डेवलपमेंट सेंटर भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है हम जो करते हैं दैट इज ऑपरेटेड बाय अ एआई टेक्नीशियन, skilled AI technician, which has got the training from the skilled AI technician. अब ये जो है वी आर कवरिंग वन विलेज और वी आर कवरिंग अ वन CDC. We are covering a one CDC cattle development center, cattle development program in 12 to 15 villages from a AI technician, and he will cover 1500 to 2000 breedable population, and near about 1000 families he will cover, and focus will be on the poor farmers. This is the coverage of that cattle development center. What are the activities we are giving through that cattle development center? We are giving the doorstep AI services, close follow-up of pregnancy diagnosis, calving, till calving follow-up will be there, and monitoring is the most important part. And also the most important part is the extension awareness about the cattle management of the dairy farmers. That is most essential. Their skill development, their awareness should be encouraged or should be done in every program, every cattle development program. And side by side, we are also giving the supportive activities like feed supplements, mineral mixture, fodder seeds, new varieties, hybrid Napier is there. That all the forages development will be also done at demo level at the CDC. And preventive healthcare, there is a preventive healthcare in deworming, vaccination. These all should be included in the supportive activities. And digital, like new technologies are there, ethnoveterinary services or ethnoveterinary medicines we are using for the preventive health, also subclinical mastitis tests for detecting the mastitis. That is also the supportive activities done by this cattle development center. The quality is the most important part of any cattle development center, and that is our dedicated central research station. They are continuously focusing on that, and that field level program also. We have to link up this cattle development center with the government schemes or government like vaccination, like NAIP, National and Artificial Insemination Program. This has to be linkages with the government also, and also with the private players, dairy cooperatives. Linkages should be done to the cattle development center. Also, people's organization forming, DIG, dairy interest group formation. These all should be done at a cattle development center. The ideal cattle development center should have this all coverage, activities, and quality. We are, as we have told that we are covering 380 districts. Out of that, we are covering in livestock development 305 districts. More than 4,700 cattle development centers are there. We are covering 98,000 families, more than villages, 98,000 villages through this cattle development center, and more than 43 lakh families we are covering. And annually, we are doing 47 lakh AIs at these cattle development centers. Now we will discuss about, like I have told that we will share the experience also, that how BIOF journey is there. This is the 54th year we are in BIOF. That our experiences, initial phases we are doing, how service delivery system is there, which models we have done. In short, I will share with you. In starting that, everyone doesn't know what is AI. We have to start from artificial insemination before the 40 years, 50 years. The people doesn't know that what is AI, what is crossbreeding, how they have done, what benefits of that. So this is a new system. That's why we have in initial phases, our veterinary officers are there and they will providing the services.
at doorstep, and we have to check that is it working, it is feasible or not feasible. Confidence of the AI worker also, that AI technician which veterinary officer is doing AI, his confidence also and the confidence of the participants also. क्या बात करते हैं आप, कैसे होगा ये, आप बोलते हैं बैल नहीं लगाना चाहिए और AI करना है, that is the new thing and everyone doesn't know, and we have to develop the confidence, motivation, awareness at that time, and that all is the initial phase, and that is provided by the veterinary officer. In mid phase we have upscale, and we have agriculture graduates recruiting, and they are doing the artificial insemination at the doorsteps of the farmers, and we are developing side by side the future supervisors for the monitoring purpose, and this will also reduces the cost. And the last one is the present, that is well-trained AI technicians. And this is the further scale, no limit is there. We can develop every youth 10 pass, 12 pass as a AI technician, and that is a huge scope and availability at any time, and we will reach in every area and every time. And that is the most coverage also, and that reduces the cost also. As a veterinary officer now, if you think that a veterinary officer as an appointment AI technician, we can't bear it that. These are the delivery systems models which we have, and now there is the engagements of these employees. Sponsoring period, and affordable charges after project will be bear by that, and also the from interest the whatever the management services charges, that will also meet out. And the coverage of program is sponsorship, government sponsors are there, dairy processors are there, farmer organizations, and revenue model. After the sponsorship, what happens? There is a question mark that some sponsor has given money for 2 years, 3 years, 4 years, but after that what happens? What that AIT will be do? यार वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब आप काम मत करो. No, we have developed the skills of that person, and continuity should be there to the farmers also. Farmers के animals का क्या होगा, उनको तो continuous service चाहिए. हमारा AI technician youth है, वो क्या करेगा? That's why we have developed a sustainability fund, and that is we have run that CDCs on a revenue model CDCs, and that is run by the self-employed youth. अब ये जो कुछ भी चीजें थी, हमको सेंटर चला रहे हैं, अच्छा सेंटर चला रहे हैं, स्किल पर्सन है हमारा AI टेक्नीशियन, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम भी होनी चाहिए. कोई भी कैटल डेवलपमेंट सेंटर हो, उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए, ताकि जो है जो कुछ भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पुअरेस्ट टू पुअर फार्मर तक पहुंचे, तो हम अच्छी क्वालिटी की नस्ल पैदा हो, अच्छी सर्विसेज हो. इसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेक हो कि भाई सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं पे दिक्कत है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहा है. तो इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग मैनेजमेंट. ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंदर हम अगर देखेंगे, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द ब्रीडिंग पॉलिसी. जिस भी स्टेट की, एवरी स्टेट हैव देयर ओन ब्रीडिंग पॉलिसीज. उसके हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस एनिमल, जो कुछ भी होम ट्रैक ब्रीड्स है उनका कंजर्वेशन होना चाहिए, क्रॉस ब्रेड को क्रॉस ब्रेड ही लगना चाहिए. दैट इज द ब्रीडिंग पॉलिसी, और उसी के हिसाब से हमको काम करना चाहिए. अदरवाइज मनमानी कोई भी बुल लगा लेंगे, कोई भी ब्रीड भर देंगे, वो नहीं चलेगा. और इसका चेक भी होना चाहिए. इसी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में ये सब चेक भी करते हैं. और इसी के लिए जो है अप्रोप्रिएट ब्लड लेवल की भी बात है. कहीं आप 100% ही यूज कर रहे हैं, 75% कब यूज करना है, 50% कब यूज करना है, ये सब चीजें भी जो है तो उसके अंदर देखनी चाहिए, और उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए. मैनेजमेंट जो है तो मॉनिटरिंग होना चाहिए.
और ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई बस चल रहा है, एआई कर रहे हैं। जो इनब्रीडिंग की बात है, इनब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये इनब्रीडिंग होती है सेम बुल, मैं हिंदी में बताऊंगा वो कि इफ इसके अंदर ऐसा होता है कि देखिए, जो बच्चियां पैदा हुई है, जो उसका बाप है, वही अगर फिर से उसको एआई हो उसी से, तो ये बहुत गलत बात है। इनब्रीडिंग हो जाएंगे आने वाली नस्लों में, जो है तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये सब इश्यूज आएंगे। तो उसलिए एवरी 2 to 3 years बुल शुड बी चेंज, ताकि इनब्रीडिंग ना हो। ये चीजें भी उसमें देखनी चाहिए। उसका जो है तो एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वॉट एवर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज देयर फॉर डूइंग द ब्रीडिंग, वो पूरा फॉलो अप होना चाहिए, उसका रेगुलर फॉलो अप है। एंड आफ्टर द एआई, वॉट एवर द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस शुड बी डन टिल काविंग, उसका फॉलो पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे इधर मैंने साइड में बताया है कि बायो गोधन सेवा ऐप जो है, that is most important app we have developed, and it is the all data is available. Whatever we are discussing here, whatever the need is there of data, that all data should be captured through the Biof Godan Seva app. And we are monitoring and we are filtering data from that, and we are analyzing at desk level also we are monitoring, and at field level also monitoring system should be there. And another is the program management. Whatever the program we are doing, that is timely supply. Major most important thing is that timely input supply हो रहा है। कैटल ब्रीडिंग में सबसे important चीज है कि जान है, LN2 जो है वो जान है। अगर वो टाइमली सप्लाई नहीं होता है, एवरी मंथ शुड बी सप्लाई देयर टू द कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स। इफ सप्लाई इज नॉट इन द टाइम, देन स्ट्रॉज विल बी, उसके अंदर मोटिलिटी नहीं रहेंगे, वो डेड हो जाएंगे स्ट्रॉ, और उसमें भर के कोई फायदा नहीं है। वी कांट गेट द कंसेप्शन। So that every channel should be there, and every month supply should be there, timely supply of inputs of feed raw, mineral mixture raw, सभी चीजों का supply जो है वो timely होना चाहिए। Monitoring and evaluation by trained supervisors, MIS should be there, regular monthly meetings should be there, and the most important is the refresher trainings. Whatever we are program implementing, what are the problems, what are the issues, उसमें सॉर्ट आउट कीजिए, किसको ज्यादा जरूरत है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें पुअरेस्ट काम किनका है, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना चाहिए, एंड उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। नाउ ये जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी हम कैटल डेवलपमेंट सेंटर पे कर रहे हैं, आई वांट टू ब्रीफ इन अ शॉर्ट दैट ये थ्योरी जो है इसका चेंज कैसे होता है। तो इसके अंदर देखिए, इनपुट सप्लाई जो कि हमने अभी बात किया है, तो उसके अंदर क्या लगता है, कैटल डेवलपमेंट सेंटर में सीमेन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, फॉडर, हम फॉडर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉडर के सीड्स है, मिनरल मिक्सचर है, ये सब चीजें जो है तो इनपुट सप्लाई रेगुलरली होना चाहिए। और इमीडिएट आउटपुट उसका क्या होगा कि नंबर ऑफ एआई इतने हो गए, इतने काफ बॉर्न हो गए, इतने कंफर्म प्रेगनेंसीज हो गया, इतने हमने फॉडर प्लॉट्स बनाए हैं, इतने फार्मर्स को हमने ट्रेन किया है, दैट ऑल आर द इमीडिएट आउटपुट्स। और मेजर हमारा जो है, हमारा फोकस जो है वो आउटकम के ऊपर है कि हम लोगों ने ये सब कुछ तो किया, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ। जो कुछ भी प्रोजेनी बॉर्न हुई है उसमें से मिल्किंग में कितने आए हैं, उनका मिल्क यील्ड क्या है, कितने फॉडर प्लॉट जो है लोगों में अवेयरनेस जनरेशन हुआ है ताकि वो खुद से फॉडर प्लॉट कर रहे हैं, कितना वहां पे डिजीज इंसिडेंस, जो हम डिवर्मिंग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वैक्सीनेशन डिवर्मिंग का क्या लेवल है, मोर्टेलिटी का क्या लेवल है, ये सब हमको देखना पड़ेगा एज अ आउटकम, और इम्पैक्ट उसको बोलेंगे। तो ये सब चीजें हमको हासिल करने के लिए आज भी, जैसा मैंने बताया, नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट हाउ वी हैव अप्रोच, कैसा होना चाहिए कैटल डेवलपमेंट, कैसा होना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ खामियां है तो आज भी बहुत स्कोप है, हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइवस्टॉक प्रोग्राम, ब्रीडिंग हो, फीडिंग हो, ये सब एस्पेक्ट के ऊपर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम बना सकते हैं, एक पैकेज बना सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज है, सॉर्टेड सीमेन है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, गोट एआई इंट्रोडक्शन है, वो भी अभी बहुत जो तो तक नहीं पहुंचा है। और जो कुछ भी पैकेजेस है, ये सब हमको टारगेटेड 50 हर्ड प्रोग्राम, हम भाई ये 50 लोगों के साथ
पूरा पूरा काम करेंगे पूरा ये। और इंटरप्राइज मॉडल है AITs जो है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल यूथ। ये हमारे पास जो है आज अपॉर्चुनिटीज भी है और पोटेंशियल भी है हमारे पास। तो ये जो मेन फोकस है यहाँ पे हम थोड़ा रुक जाएंगे, इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हमने सब देख लिया हाउ वी आर रन, कैसे कैटल डेवलपमेंट चलना चाहिए, क्या क्या उसमें सपोर्ट्स होना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग कैसे होना चाहिए। अब हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा एम क्या है, व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज दैट मेजर हाई जेनेटिक ब्रीड जो है हमको पैदा करनी है ताकि उसकी माँ से ज्यादा उसका दूध आना चाहिए। ठीक है, अब ये हासिल करने के लिए और दूसरा हमारा एम होना चाहिए कि हमारे पास जो गाय है, वॉट एवर द एनिमल्स आर देयर, वी हैव फार्मर हैव एनिमल्स, दैट एनिमल उनका इंटरकाविंग पीरियड क्या है, दो ब्याह में अंतर कितना है, वो भी हमको देखना चाहिए। वो दो ब्याह का अंतर, हर साल एक बछिया पैदा होना चाहिए, हर साल जो है एक गाय ने एक बछिया देना चाहिए या एक बछड़ा देना चाहिए। तो ये साइकिल जो है वो अच्छे से चलती रहेंगी। एंड वॉट एवर द काफ विच आर बॉर्न थ्रू हाई मिल्क प्रोजेनी, अब अच्छी प्रोजेनी बॉर्न हो गई, हमने बहुत अच्छा सीमेंट यूज किया है, लेकिन उसका जो है तो ग्रोथ कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट में, वो फार्मर का अवेयरनेस करना चाहिए। फार्मर को अवेयर बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि देखिए आपकी गाय को ऐसे खिलाना है, ऐसे मैनेजमेंट करना है, इतना खिलाना है। ये फार्मर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे जो ट्रेन स्किलफुल AI पर्सन्स है उनका अच्छे से ट्रेनिंग होना चाहिए। और इसके अंदर जब हम नया सेंटर चालू करते हैं तो एक लॉन्चिंग प्रोग्राम कर दीजिए। लॉन्चिंग प्रोग्राम में क्या होगा कि भाई देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लोकल यूथ ही क्यों ना हो, he will also go door to door, he will do the baseline survey, he will launch that I am working here and I am provide these are the services which from I will provide to you and these are the benefits for you। ऐसा हम फार्मर का अवेयरनेस करके उनसे लाइजन, उनसे लिंकअप करके, रिलेशन बिल्डअप करके हम काम स्टार्ट करेंगे। अब वहां पे काम स्टार्ट होना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमको प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि जो है फार्मर ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अब उसके अंदर देखेंगे ब्रीडिंग मैनेजमेंट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एनिस्ट्रेस है, रिपीट ब्रीडिंग है, ये सब इश्यूज है फील्ड के अंदर। तो ये इसके लिए हमको कैटल हेल्थ कैंप करने चाहिए। हमको जो है तो एक 50 काउ फॉलो प्रोग्राम है जो बायोफ रन करता है। तो इसका मकसद ये है कि जिस गांव में हम काम कर रहे हैं, 4-5 गांव जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, वी विल फोकस 1 by 1 विलेज, और एक विलेज में 50 एनिमल लेना है। और वो 50 ऐसे एनिमल जो हीट पे नहीं आते हैं, अनस्ट्रेस है, रिपीट ब्रीडर्स है, उनको रजिस्टर कर लेना है। उनका रेगुलर फॉलोअप करना है, उनको लिगोल्स आयोडीन 1% इन 10 ml नॉर्मल सलाइन दे, उनका ओवरी मसाज कीजिए, उनको मिनरल मिक्सचर चालू कीजिए, उनको डिवर्मिंग कीजिए। इसी तरह से क्या होगा कि वो 15 दिन में, अगले 20 दिन में या 1 माह में अच्छी मार्च पे आ जाएंगे। ही विल शो द she will show the heat, proper heat, and he will do the AI। इससे क्या होगा कि हम खुद हमारे नंबर ऑफ AI बढ़ा सकते हैं, हम लोगों का अच्छे से सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहाँ के एनिमल का भी मैनेजमेंट हो जाएगा। एंड द क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज जो है, क्वांटिटी और क्वालिटी, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज केयर बाय द बायफ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फीडिंग मैनेजमेंट। हमने एक सेंटर शुरू कर दिया, ब्रीडिंग मैनेजमेंट में लोगों को अवेयर कर दिया, सब कर दिया। उसी के साथ साथ हमको जो है फीडिंग मैनेजमेंट पे, क्योंकि हम देखते हैं कि फील्ड के अंदर जो है whatever the 60 to 70% expenditures। हेलो हेलो, Hello. हाँ, आई एम ऑडिबल ना? Yeah, Yes, yeah, yes. you are audible. या जस्ट, हाँ, आई एम हियर। Feeding management, the most important is that the feeding management, 60 to 70% expenditures are on the feeding management, and we have to care about that, because if the balanced feeding will be not done, that will lead to the poor production,
जो कुछ भी हमको आगे प्रोडक्शन मिलने वाला है उसमें क्वालिटी नहीं रहेंगी और क्वांटिटी भी नहीं रहेंगी, और एनिमल की हेल्थ भी जो है, अब जो ये ब्रीडिंग है ये भी फीडिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर एनिमल का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा, उसको ग्रीन फॉडर नहीं देंगे आप, एवरी एनिमल शुड गिव द ब्रीडिंग फॉडर। जो एडल्ट एनिमल है उसको आप 20 से 25 किलो हरा चारा होना ही चाहिए। ड्राई फॉडर शुड बी 5 kg फॉर द एडल्ट एनिमल ऑन एन एवरेज। और मिनरल मिक्सचर जो है वो हम जो कुछ भी मेंटेनेंस के लिए है वो 50 ग्राम पर डे होना ही चाहिए। ये सब एक बैलेंस फीड होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो मिनरल्स की कमियों के कारण जो है एनिमल हीट पे नहीं आएगा, हीट पे आता है तो गाभिन नहीं रहेगा, उसके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसके अंदर जो है फीडिंग मैनेजमेंट में हमको बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए हमने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, भाई खाली ब्रीडिंग का काम मत करो, आप फीडिंग के ऊपर भी ध्यान दो, लोगों में फीडिंग का भी अवेयरनेस, आपके जानवर को खिलाना कितना है, कैसे खिलाना है, मिनरल मिक्सचर आप खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, जो काफ बॉर्न हुए हैं, जो काफ बॉर्न हुए, वट एवर द काफ आर बॉर्न, दैट काफ की ग्रोथ कैसी हो रही है, what is the growth of that calf every day that calf should be 400 ग्राम, उसका हर वेट बढ़ना ही चाहिए ताकि वो जो है तो अटेन करेगा प्यूबर्टी जो है 12 से 15 महीने में इन क्रॉस ब्रेड। और इंडिजिनियस एनिमल में जो है वो 2.5 से 3 साल तक वो लगता है। लेकिन हम अच्छा जेनेटिक्स है, अच्छा जेनेटिक्स है, अच्छी काफ पैदा हो गई है, लेकिन उसका फीडिंग मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं हुआ है, उसका डिवर्मिंग टाइम पे नहीं हुआ है, तो फिर वो कैसे ग्रोथ करेंगी, एंड हाउ वी विल बी एक्सपेक्ट, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। फील्ड के अंदर ये चीजें होती है। ऐसे नहीं है ना कि बहुत अच्छा सीमेन है, हाई क्वालिटी सीमेन है, हाई जेनेटिक मेरिट प्रोजेनी बॉर्न हो गई है, लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन आगे नहीं आ रहा, वो तो हिट पे नहीं आई है। आपने मैनेजमेंट कैसे किया, आपने फीडिंग कैसे की है, आपने उसका हेल्थ मैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है, ये सब चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखती है। एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क ऑन दैट हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। उसीलिए हम ग्रीन फॉडर का अवेलेबिलिटी करके दीजिए। अगर वहाँ पे लैंड है तो हम सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हाइब्रिड नेपियर वहाँ पे डेमो प्लॉट्स करेंगे, मक्के के प्लॉट्स करेंगे, मेज के प्लॉट्स करेंगे न। यही है जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे हम साइलेज बना सकते हैं। साइलेज जो है फर्मेंटेड फॉडर है, वो भी हम वहाँ पे बना के प्रिजर्व करके रख सकते हैं 2 साल तक 3 साल तक, ताकि जब ग्रीन अवेलेबल ना हो तो वो ग्रीन का काम करे। ये सब चीजें, अजोला है बहुत ही हाई प्रोटीन है, वो भी हम जो है तो वाटर फर्न है जो पानी के अंदर रहता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसका भी हम लोगों में डेमो कर सकते हैं, ताकि जो है न्यूट्रिशन फीडिंग जो है वो एनिमल को अच्छे से मिले, तो ही उसका जो है तो ग्रोथ अच्छा होगा, उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन भी अच्छा है तो फिर बाकी क्वालिटी की बात आ गई। मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, फिर अब फैट नहीं है, एसएनएफ नहीं है, बहुत इश्यूज है फील्ड के अंदर, तो उसके लिए भी माइक्रो मिनरल्स जो है वो मिनरल्स की कमतरता है, ड्राई फॉडर नहीं दे रहे हैं, इम्बैलेंस ऑपरेशन दे रहे हैं। ग्रीन भी दीजिए, ड्राई भी दीजिए, इक्वल क्वांटिटी भी दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए। इसी तरह से ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से लिंकअप है, तभी जाके फीडिंग अच्छा रहा तो मैनेजमेंट भी अच्छा होगा ब्रीडिंग का, और इसी साथ साथ उस एनिमल का हेल्थ भी जो है वो मैनेजमेंट हो जाएंगे। जैसे कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव है, मास्टाइटिस होता है जानवरों में, तो वो हमको प्रिवेंटिव हम उसको देख सकते हैं, हम उसका मास्टाइटिस टेस्ट कर सकते हैं, सब क्लिनिकल में ही कर देना चाहिए ताकि वो जो है क्रोनिक केस ना बने। इसी प्रकार से जो है हमको प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है, डिवर्मिंग है, ये सब चीजें, ताकि क्यूरेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान ना जाए। तो इस प्रकार से अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं तो ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव रहेंगी, और हमारा जो कुछ भी कैटल डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे हम पुअर फार्मर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, वी आर गिविंग द सर्विसेज टू द पुअर फार्मर्स एंड दैट विल बी द बेनिफिशियल एंड इम्पैक्ट विल बी डन। इसी के लिए जैसा बायफ मैंने बताया है कि वो हमेशा जो है अलग अलग नई नई चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, हाई जेनेटिक मेरिट है या फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग है। अब जो कुछ भी मिल्किंग एनिमल्स है, जो कुछ भी फील्ड के अंदर हम देखते हैं कि भाई बुल्स कहाँ से आएंगे, हाई जेनेटिक मेरिट बुल कहाँ से आएंगे, अगर उसका रिकॉर्डिंग होगा, परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग होगा तो तभी वो चीजें आ सकती है। तो इस प्रकार से बायफ जो है इन चीजों पे ध्यान देते हुए हाई सिलेक्शन इंटेंसिटी है, यूज ऑफ ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर है, बुल मदर प्रोडक्शन है, ये सब चीजें करके ताकि हमको जो है अच्छे से अच्छे
बुल्स पैदा होने वाले जो है फील्ड से भी हम कलेक्ट कर सके और उनका अच्छे से सीमेंट बना के जो है वो फील्ड पे हम रिटर्न बेच सके। तो इसके अंदर ये 1969 से जो है हमारा बायोफ का जो है सीमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। हमने पहले इंपोर्टेड सीमेंट यूज किया था, 74 से हमने फ्रोजन सीमेंट एक्टिविटी स्टार्ट किए हैं और आज जाकर वी हैव इन 2017 established a state of art cement station and we have also established a 6 sorted cement laboratory in 2018 and goat cement production unit at Wagholi, and we are ranked by A by Central Monitoring Unit, Government of India, and contribute about 12% of the FSD domestic frozen cement, covering 35 pure and mixed breeds. तो ये हमारे ब्रीड्स हैं अवेलेबल, 35 ब्रीड्स, होल्स्टेन है, क्रॉस ब्रीड्स में है, इंडिजिनियस में है, बफेलो में है। ये सब ब्रीड्स जो है हम यूज करते हैं फील्ड के अंदर। और गोट का जो बेनिफिट है, जैसा कि गोट ट्रस्ट का इससे पहले हुआ ही है लेक्चर, तो उन्होंने भी गोट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है बायोफ भी गोट के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी है, लोगों तक ये पहुंचाना है। गोट एआई जो है वो लोगों में कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो गरीब की गाय है वो अच्छे से प्रोडक्शन दे सकेंगी और उसका ज्यादा से ज्यादा इनकम आ सकेगा। तो इसके ऊपर भी जो है साइंटिफिक ब्रीडिंग है और प्रमोशन के काम जो है वो बायोफ करती है। और हम लोगों को भी जहाँ पे कैटल डेवलपमेंट सेंटर है उसके लिए कुछ अलग एसेट नहीं लगता है गोट एआई के लिए, सिर्फ वो वजनल स्पेकुलम है। लेकिन सब वही चीजें, एल2 कंटेनर है, आपको सीमेंट सप्लाई भी हो जाएगा। बस आपको जो है वो एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग है 8 दिन की, वो करना पड़ेगा ताकि आप जो है गोट एआई भी कर सके। अब न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने बात की थी, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ये इसमें होता क्या है कि देखिए 90% फीमेल्स विल बी बॉर्न। हम देखते हैं कि जो हर्ड, जहाँ पे हमारा हर्ड है, हम जो कन्वेंशनल सीमेंट यूज कर रहे हैं, पारंपरिक उसको बोलेंगे, जो हम पीढ़ियों से चला आ रहा है कि हम जो सीमेंट यूज कर रहे हैं उसमें 50% बच्चियां पैदा होंगी और 50% जो है मेल बॉर्न एंड 50% फीमेल बॉर्न। लेकिन इसके अंदर जो है वो 90% फीमेल विल बी बॉर्न, एक्स क्रोमोसोम इज सेपरेटेड, that's why the semen which are supplying that is having only X chromosome, and by this replacement of herd will be the faster level and जो lost होता है and saving in lost time due to pregnancy leading to the male calf। इसमें इकोनॉमिक्स भी अच्छे से बढ़ता है फार्मर का, रैपिड इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, डिजायरेबल ट्रेट्स जो हमको चाहिए वो हम फास्टर वे में कर सकते हैं। और बुल प्रोडक्शन के लिए जैसा मैंने बताया है कि हमको हाई जेनेटिक मेरिट के बुल्स अगर फील्ड से मिलेंगे तो ही हम वो टेस्टिंग करके उनका प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। और डिफिकल्टीज जो है, रिडक्शन इन कार्विंग डिफिकल्टीज जनरली ड्यू टू द मेल काफ, एंड हियर in sorted semen born 90% females। and another, अभी हम देखते हैं कि there is a ban on slaughter, कंट्रोल नहीं होता है, लेस इकोनॉमिक बर्डन है फार्मर के ऊपर। तो ये सब चीजें यूटिलिटी नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ट्रैक्टर्स का यूज हो रहा है, ये सब चीजें हैं। तो देर इज a drift in shift cattle utility also and enhance quality of heifer supply to the dairy entrepreneurs। इसके लिए सॉर्टेड सीमेंट के ये सब बेनिफिट्स है। इसमें हम देखेंगे एक चीज है सॉर्टेड सीमेंट में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे एक फार्मर है, उसके पास 4 गाय हैं, he is having 4 cows and every cow gives birth to every year। तो that's in that way what happens in coming 5 years if he is using regular semen and if one farmer is using sex sorted semen। So what difference is there by using regular semen and sex semen in 4 cow in a 5 year? First year we will get 50% regular semen and sex sorted semen we will got 4 heifers, and next year onwards and then 3rd year onwards same will be there in conventional semen। and here you see that in sex semen there is 90% births of female calf। in 4th year whatever the progeny are there, they are also giving the births, likewise number will be increased। तो इस तरह से at the end of 5 years you see that 13 male and 13 female 50% will be born in the regular semen
And you see in sex semen, we will get the 90% female and the bull calf will be the 10%. So there is a difference of 16 extra female calf will be born through the use of sex sorted semen. It is a very, very effective in the quick herd replacement and the faster replacement and the economic to the farmers that they will get the 90% females. And likewise, year-wise availability of replacement for the 100 cows here, we are showing that 319 females will be born through the conventional semen and 574 born through the sorted semen. Also, there is a new technology, embryo transfer. लाइक टेस्ट ट्यूब बीबी, अगर उसको समझाना है तो हम ऐसा बोलेंगे कि टेस्ट ट्यूब बीबी जैसा होता है या सरोगेट मदर जैसा है। तो उस प्रकार से जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, उसमें होता यह है कि डोनर और रेसिपिएंट है, तो हम जो कुछ भी डोनर्स है तो उनके जो है डोनर्स के फ्लश आउट करते हैं वो, और उसको जो है तो फर्टिलाइज करते हैं, और वो फर्टिलाइज करने के बाद जो है उनको फ्रोजन भी रखते हैं। तो इस प्रकार से बाद में उनको जो है रेसिपिएंट्स में डाला जाता है, ताकि जो है हमको क्विकर एंड फास्टर जो है मल्टीप्लिकेशन है, और ये बहुत इमीडिएट लेवल पे हो जाता है, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा 4-5 प्रोजेनी बॉर्न होना, अपग्रेडेशन होना। इमीडिएट लेवल पे जो कुछ भी गाय है उनका जो है पूरे गुणधर्म उसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये फील्ड पे भी किया है और सीमेंट स्टेशन पे भी किया है। वी हैव गॉट दिस रिजल्ट रिसेंटली जो है, वी हैव गॉट Sahiwal calf from a HF crossbred. Here there is, you see that here born the Sahiwal calf from the HF cow. Donor is Sahiwal and the recipient is the HF cross. This can be done at a faster level. And at field, recently this photo I have added in Urli Kanchan nearby Pune area. And now the most important regarding the skill developments of the youths, I will brief about that. We have 5 accredited centers, Artificial Insemination Institute by the Government of India, Animal Husbandry Department, Central Monitoring Unit has accredited 5 training centers in BIF. You see that in Maharashtra 2 accredited training institute are there for artificial insemination in Pune and Urli Kanchan, in Gujarat, Bharuch, and in Pratapgarh, Uttar Pradesh, Raniganj, and in Karnataka, Tiptur, our accredited AI training centers are there. Here, all the facilities are available as the Central Monitoring Unit recommendations. Now the capacity building of the local youth. Here you see that the learner profile will be the 10 pass, 12 pass or diploma holders, age between the 18 to 35 years. And we have a course of 3 months. In that 1 month theoretical class is there and 60 days field training. We have our cattle development center, as I have told, more than 4,000 we have cattle development centers. And at that the potential centers where the number of AI is more and the skillful AI technician is there, we will keep that trainee at that center for 2 months, and 1 month theory classes will be done physically at our training center. They will perform AI in field, identifying diseasing animals, good feeding practices also they will learn through our cattle development center. And after getting the trained certificates and skills they have got, they will do as a service provider for artificial insemination. They can independently start the centers also. They have investment required, own motorcycle and equipments costing 1 lakh rupees, and the working capital will be the monthly is 5,000 rupees for LN2 and semen 100 doses. And expected income of that local youth will be the 1,80,000. This required villages, 10 villages area, and support from the surrounding Gram Panchayat or local area dairy cooperatives or milk collection centers. They will also promote, they will also support for the local youth to
start a cattle development center at its own. This how capacity building of a local youth will be done through our artificial insemination training institutes. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sheikh. चैतन्य जी, या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, या Yeah. So, once again, thank you so much for your presentation today. बहुत important topic था और अच्छी तरह से आपने explain किया, कई important points आपने बताए आपके presentation में, तो मुझे लगता है कि ये काफी फायदा होगा लोगों को. Before we move to the next part about BIF, other programs of BIF, I think there might be some time for some Q&A, some interaction. अगर अपने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप अपने आप को म्यूट करिए एंड थोड़ा सा इंटरेक्शन टाइम है अपने पास, तो बातचीत कर लेंगे. किसी को भी कोई पूछना हो, कोई पॉइंट्स बताने हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जरूर प्लीज शेयर करिए. Any questions, anybody? Good evening, Chaitanya ji and Shraudin ji. Thank you very much. मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ कॉर्ड से. मैं बैफ में आपके वहाँ आके ये देखने का भी मौका मिला था. हम लोगों ने इनफैक्ट सोचा था कि हम आगे थोड़ा ये कैटल डेवलपमेंट सेंटर जैसा एक एक्सप्लोर भी किया था, पर उसमें कुछ इतना हमारा हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम एनिमल हस्बेंड्री का और ये जो चलते हैं इनके काम और फार्मर्स का इतना हम जो एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ खास निकला नहीं था, मतलब अपने एंड से कि हम शुरू कर पाए. लेकिन एक बार फिर से हम सोचेंगे भी इसके बारे में. हमारी टीम के मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं. मेरे को थोड़ा सा एक और इंटरेस्ट जो गोट्री के ऊपर, जो गोट रेयरिंग के ऊपर जो है, उसके ऊपर अगर आप जो कॉस्ट एलिमेंट होता है और उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो, क्योंकि गोट रेयरिंग का एक काफी पोटेंशियल और है हमारे पास यहाँ पे. जी 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 बिल्कुल नरेंद्र जी. देखिए गोट का जो है, जैसा कि दैट इज द पुअर मैन्स काउ, ठीक है. अब उसके अंदर हमने जैसा बताया था कि गोट डिस्ट्रीब्यूशन में तो मजा नहीं है. गोट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होने वाला है, आज दिया है उसके बाद उसका ब्रीडिंग क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये कुछ पता नहीं है. तो हमारा जो है इकोनॉमिकल जो फार्मर को बेनिफिट होना चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ भी वहां पे गोट अवेलेबल है, हाँ शुरू में हम सपोर्ट कर सकते हैं. शुरू में जिनके पास गोट नहीं है ऑलरेडी, फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द where goats are available. Farmers with the goat available, 1 or 2 goats, 3 goats, having 1 doe, 1 buck, and वहां से हम धीरे धीरे जो है उनको अवेयरनेस करेंगे कि देखिए आप ऐसे खिलाइए, आप इतना खिलाइए. और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जो ब्रीडिंग के अंदर गोट एआई आया है, तो उसका भी हमको जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको अच्छे से अवेयर करना पड़ेगा, ताकि जो है उनकी इनकम बढ़े. उसमें मेन क्या होता है कि हाउसिंग के अंदर भी कुछ इशू है. हाउसिंग अच्छे से नहीं होता है. गोट का जो है वो बहुत साफ सुथरा एनिमल होता है. उसको जो है प्लेटफॉर्म, हम बाम्बू के प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है. वो प्लेटफॉर्म रखेंगे तो वो अच्छे से उस पर बैठेगा, साफ सफाई रहेंगे, हाइजीनिक कंडीशन रहेंगे, उसका रेगुलर डिवर्मिंग है, वैक्सीनेशन है. तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है अगर हम स्टार्टअप करें. द फार्मर्स विच आर हैविंग गोट एट प्रेजेंट, and then we will think about the first we have to guide them. पशु सखी है, हम पशु सखी बना सकते हैं गांव के अंदर. इस प्रकार से जो है जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो कुछ भी अवेलेबल गोट है, उनको हम साथ में जुड़ा के फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे, देन वी विल गो टू द ब्रीडिंग. इस तरह से हम कर सकते सर. नरेंद्र जी. हाँ थैंक यू. इसमें जैसे आपने देखा होगा, एक मैं थोड़ा सा बिल्ड ऑन करना चाह रहा था कि वाटरशेड प्रोग्राम्स और लाइवलीहुड डेवलपमेंट्स में गवर्नमेंट भी जैसे वो यूनिट देते हैं ना, एक 4+1 का और ऐसे करके एक यूनिट बना के देते हैं.
तो उसके बाद क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो यूनिट लेने के बाद फिर वो उसका बहुत ज्यादा मतलब चलता नहीं है जो आगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में मिल रहा है तो इसीलिए लोग ले लेते हैं। क्या इसका थोड़ा एक फोरकास्ट, जैसे लाइक अगर मैं बोलूं कि एक यूनिट अगर हम देते हैं और उसके बाद उनका आगे का जैसे 3 to 5 years का फोरकास्ट में, अगर उसको थोड़ा बिजनेस मॉडल जैसा अगर कुछ एग्जांपल हो जहाँ उनको लगता है शुरू से इनकरेजमेंट हो, तभी लोग थोड़ा आगे और अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं उसको। अदरवाइज वो उतना ही दे के उसके बाद खत्म हो जाती है चीजें, ज्यादातर हमने ये देखा है। अब क्या है ना, वो आपने जो बोला ना 4+1 वाला, तो दैट शुड बी द ब्रीडेबल फर्स्ट। और उनका कौन से लैक्टेशन में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बकरियां हैं या तो छोटी बकरियां हैं, फिर उनका ग्रोथ होगा। तो अगर ऑन एन एवरेज अडल्ट है तो हमको उनको ऐसे समझाना है कि देखिए भाई, जैसा मैंने अभी सॉर्टेड सीमेंट का बताया ना, कि भाई ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपका होगा। अगर आप कन्वेंशनल सीमेंट यूज करेंगे तो इतने बच्चियां पैदा होंगी, अगर सॉर्टेड यूज करेंगे तो इतने होंगे, 90% मोर होंगे। तो उसी प्रकार से गोट के अंदर भी जो कुछ भी यूनिट दिया गया है, अभी होता क्या है ना सर, ये 5+1 है, ये बक भी है इसमें दिया हुआ है, तो उसका समय पे ब्रीडिंग होना चाहिए। इफ बक इज नॉट, अगर उसकी मोटिलिटी नहीं है सीमेन में, तो दैट बक काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हर साल देखिए गोट में कैसा है कि मैक्सिमम हमको 6 महीने में तो भी एक उसका किडिंग हो जाना चाहिए। इस प्रकार से उनको मल्टीप्लिकेशन बताइए और उस हिसाब से वो लोग अट्रैक्ट होंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी और एनी कमेंट्स? हेलो जी बताइए, यस प्लीज गो अहेड। सर, मेरे पास अभी 2 गाय ही है। जी जी हेलो। जी जी बोलिए ना। सर, उनका न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर चले, मतलब डेली उनको 30 केजीज ग्रीन फॉडर और 6 केजीज ड्राई फॉडर और डेली 100 ग्राम सुबह शाम मिनरल मिक्सचर चालू है उनको। हम्म। हाँ हाँ बोलिए ना सर। मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जी हो पा रहा है। क्या आवाज नहीं हो पा रहा है? आपका थोड़ा आवाज कट हो गया भंगिका जी। आप क्या बता रहे हैं कि क्या नहीं हो पा रहा है? सर, उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ब्रीडिंग ब्रीडिंग हेलो। बोल रहे हैं क्या? हाँ, ब्रीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मतलब वो हीट पे टाइम टू टाइम आ रही है, लेकिन एआई करने के बाद भी हीट पे नहीं है वो, मतलब कंसेप्ट नहीं कर रही है वो। दैट इज द रिपीट ब्रीडिंग प्रॉब्लम। तो इसके अंदर देखिए कि मेन रिपीट ब्रीडिंग में क्या होता है कि जब जानवर रिपीट ब्रीड कर रहा है तो वो कौन से लैक्टेशन का है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट काविंग हुआ है, जब रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा था क्या, उस वजह से उसमें एंडोमेट्राइटिस हो सकता है या दूसरी चीजें हैं। जो सोट है वो दही के जैसा है क्या, ये सब चीजें उसमें मेजर इम्पोर्टेंट है। और अगर वो सही से हीट पे आता भी है 21 दिन को, एवरी 21 दिन को वो आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में उचित ये रहेगा कि एक हीट आप छोड़ दीजिए, दूसरी हीट में भरिए। या फिर जो है तो अगर उसका ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं हो रहा है, देखिए होता क्या है ना कि एनिमल हीट पे आया है तो एआई का जो टाइमिंग है वो मिड हीट में होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, हमने उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अच्छी बात आपने बोली है कि एआई टेक्नीशियन कब आके करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीट के सिम्टम जो है, एनिमल का जो हीट है वो 24 आवर्स का है, तो उसके अंदर मिड हीट में उसको एआई होनी चाहिए। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की हमने बात की थी कि कब भरते हैं आप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि वो लेट हीट में भर रहे हैं तो फिर वो ओवुलेशन नहीं होगा उसका। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा देखिए। आप क्या कीजिए कि आपके एनिमल में कौन से डॉक्टर आते हैं एआई करने के लिए, आप किस समय पे वो हीट पे आती है, उसका समय जो है वो मिड हीट का कब है, थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिए। और अगर ये सब चीजें राइट है तो उसका जो है ओवुलेशन सही से नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब को आप बोलिए, ही विल ट्रीट दैट एनिमल। ही विल चेक अगर वहां पे सिस्टिक ओवरी है क्या। सिस्टिक ओवरी रहने के कारण भी जो है वो एनिमल जो है कंसेप्ट नहीं रह सकता। ठीक है। ठीक है। टाइमिंग सर मतलब मिड में होना चाहिए, मतलब अभी अभी अगर सुबह हीट पे आई है
हाँ, तो शाम को भरना है, उसका थंब फार्मूला है। अगर सुबह मार्च पे आती है तो उसको शाम में भरना चाहिए, अगर शाम में आती है तो उसको सुबह भरना चाहिए, ताकि वो क्या होता है ना, 12 से 18 घंटे में मिड हीट में उसको एआई होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं अभी कभी कभी डॉक्टर को जब पूछता हूँ ना ये बात को, तो वो हम्म। बोलते हैं कि अगर सुबह आई है तो कल सुबह हम एक एआई करेंगे। नहीं तो वो 24 आवर्स हो जा रहे सर, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ओके, मतलब वो डॉक्टर अभी थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। हाँ, 24 आवर्स के बाद नहीं करना चाहिए, मिड हीट में करना चाहिए, 12 से 18 घंटे में ही करना चाहिए। हेलो। जी जी। हाँ, मैं ओंकार सैनी बोल रहा हूँ कोर्ट से, यहाँ से। तो जो एआई कराने का जो टाइम है, जैसे अभी गाय है तो वो उसने बच्चा डिलीवर किया, उसके 3 महीने के बाद उसको हीट आता है। तो क्या उस 3 महीने के बाद जो हीट आता है उसमें उनको एआई करवा देना चाहिए या 6 मंथ के बाद करवाना चाहिए? नहीं 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 सर, मैंने देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने। वी हैव टू डू, हम क्या चाह रहे हैं कि हर साल एक काफ पैदा हो, जो हमारी काऊ है उसको हर साल एक काफ पैदा होना। अब आप बताइए एक काफ कैसे पैदा होगा, 9 महीना 9 दिन तो उधर चले गए प्रेगनेंसी के। हाँ, और बचे कितने दिन, 60 70 डेज, 80 डेज। तो यानी कि जैसे ही वो हीट दिखाते हैं, पहला हीट आप मिस कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी आप भर सकते हैं, इमीडिएट भर देना चाहिए। तभी तो जाके ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका एनिमल आप 6 महीने तक वेट करते हैं, आप उसको भरते नहीं है, हीट भी दिखाता है तब भी आप उसको नहीं भर रहे हैं, तो होगा क्या, वो प्रेग्नेंट रहेंगी 7वें 8वें महीने में, जबकि उसका जो है वो ड्राई पीरियड आ जाएगा। फिर अब वो प्रेग्नेंट रहेंगी तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हमारी गाय 7 महीने की जब हो जाएंगी तब हम उसको जो है 8वें महीने में ड्राई कर देंगे। तो आप लगाइए आप कितने महीने मिल्क लेंगे फिर, दैट विल अफेक्ट मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो। तो वेरी गुड, अगर आपकी गाय दिखाती है विद इन द 3 मंथ्स हीट, तो आपको इमीडिएट भर देना चाहिए उसको, ताकि आपको एवरी ईयर काफ मिले। ओके। थैंक यू सर, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी धारणा रहती है कि दूध कम हो जाएगा अगर आर्टिफिशियल हाँ, इंसेमिनेशन करवा दिया, ये हमारे यहाँ फार्मर में बहुत कॉमन ये होता है। यस सर, यस सर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें होता क्या है ना, कि मैंने जैसा बताया ना, दूध हमको कितने दिन निकालना है, 300 डेज निकालना है। तो हमारा जब काविंग हो गया है तो वहां से 300 डेज हम देखते हैं, यानी कि काविंग के बाद 7 महीने। अगर हम 6 7 महीने वेट ही करते बैठेंगे तो कब उसको प्रेग्नेंट करेंगे, तो फिर आप दूध कितने दिन निकालेंगे। अब ऐसे भी तो नहीं करते ना कि दूध बंद कर देंगे आप 8वें 9वें महीने में, ऐसा भी नहीं होता है ना फील्ड में। नहीं नहीं। फिर आप सोचते हैं कि अभी गाभिन अभी तो हुई है, अब उसका जब 7वां महीना लगेगा तब मैं उसको ट्राई करूंगा, तो आप यानी कि 14 महीने 12 महीने दूध निकाल रहे हैं। तो दैट विल अफेक्ट द नेक्स्ट लैक्टेशन साइकिल ऑल्सो। और ये गलत है, धारणा है कि दूध कम हो जाएगा। देखिए दूध कम कब होता है, जब एनिमल हीट में होता है, दैट इज द सिम्टम ऑफ हीट, नॉट एआई करने से दूध कम नहीं होगा। वो तो सिम्टम आप देखिए ना, जनरली एनिमल जब हीट में आता है, वन ऑफ द सिम्टम है मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हो जाएगा, थोड़ा वो मिक्चुरेशन यूरिनेशन करेंगी थोड़ा थोड़ा, ये सब चीजें उसके सिम्टम्स है, वो तो होता ही है। हमको वही और तो है ना, अवेयरनेस स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, फार्मर को भी समझाना है कि ये धारणाओं से हट जाइए और ऐसा कीजिए, तभी जाके ईयरली काफ आए। और दूसरा, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो अब लगभग हर पंचायत में हमारे एरिया में अभी डॉक्टर है और वो करवा रहे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो हीट का जो टाइम है वो हम शायद काउंट नहीं कर पाते, तो हमें पता नहीं चलता कि कितने टाइम के बाद, कितने घंटे के बाद उसको हीट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना चाहिए। जैसे 24 आवर तो लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम्म। तो एक्चुअल में टाइम कितना है, जब उसको पहला सिम्टम आया हम्म। तो उसके कितने घंटे के अंदर उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाना चाहिए? वही मैंने बताया ना, 12 से 18 घंटे। कुछ एनिमल रहते हैं 1% 2% जो है 36 आवर 48 आवर्स हीट दिखाते हैं, वो यानी कि ब्लड लेवल जिनका ज्यादा होता है, जो क्रॉस ब्रीड एनिमल है जिनका ब्लड लेवल बहुत हाई हो गया है, 70 80%, बहुत माइनर केसेस है वो। इन दैट केस यू कैन
इंसिमिनेट आफ्टर, वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपको पता है कि इसकी हीट जो है ये 24 घंटा के बाद भी रहती है, 36 आवर रहती है, 48 आवर्स रहती है, तब आप जो है शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल नॉर्मल इन एवरी केसेस वी हैव टू डू AI इन 12 to 18 hours after the heat detection. Thank you. Thank you, Dr. Sheikh. I think I don't know और किसी लोगों के पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो एक लास्ट कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर we will move to the last section. हेलो। जी जी हाँ सर, आप थोड़ा और गाय के फीडिंग के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हो क्या, TDN मेथड या ड्राई बेस मेथड? हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए। इसके अंदर देखिए कि कैसा है कि जैसा अभी हमने बताया है कि फीडिंग के अंदर जो है ग्रीन फॉडर चाहिए उसको, और ड्राई फॉडर भी चाहिए। तो उसी के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो भी हमको एनिमल को देना चाहिए, जिसको हम डेप बोलते हैं, या जो कंपाउंडेड फीड जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो वो फीड भी जो है वो एनिमल को देना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए जो है वो 1 kg देना चाहिए एवरी एनिमल को। और अगर वो दूध में है तो उनको 2 किलो प्लस एवरी लीटर के ऊपर जो है वो 400 ग्राम देना चाहिए। इस प्रकार से हम जो है वो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स जो आप बता रहे हैं तो वो भी उससे कवर हो जाएंगे। और जनरली जो है ना वो कंपाउंडेड फीड यूज करना चाहिए, ताकि वो जो है वो बैलेंस रेशन के हिसाब से बनाया जाता है। उसमें सभी जो है 12% TDN, DCP जो है तो 70%, मिनरल मिक्सचर 3%, ये सब मिनरल माइक्रो जो रहते हैं, माइक्रो मिनरल्स, ये सब उसमें होते हैं। इस प्रकार से जो है कॉन्सेंट्रेट फीडिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जो मैंने चैट पे पिछले कुछ महीनों पहले हम लोगों ने साइलेज प्रिपरेशन और उसके साइंस के बारे में एक लेक्चर रखा था। तो दैट उस यूट्यूब वीडियो का भी मैंने अपने चैट पे लिंक दिया है, अगर किसी को देखना है तो जरूर जाके के देख लीजिए और शेयर भी करिए। कोई आपके एनजीओ में या आपके कम्युनिटी में कोई जानना चाहते हैं कि साइलेज कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनाया जाता है वगैरह, तो फील फ्री टू शेयर दैट। With this, I think we can bring your presentation to a close. Dr. Sheikh, thank you so much for Thank sharing you. your knowledge and for explaining very patiently this important topic to all of us. जैसे आपने देखा कि most of our participants are leaders and executives from NGOs which are involved in rural development, rural knowledge development of rural communities and so on. So I think ये जो program है, hopefully that would have helped them understand and also see how to make things better. आपका email ID और मोबाइल फोन अभी तो सबको दिख ही रहा होगा, तो अगर किसी को डॉक्टर शेख से कांटेक्ट करना है बाद में तो प्लीज नोट कर लीजिए उनका email ID और मोबाइल नंबर एंड दे कैन कनेक्ट विद यू। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम हैप्पी दैट आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए एनी टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टार्स फोरम टीम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा सर सभी लोगों से बात करके, और आप लोग कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।